So this question. This question? So this question we did in the assignments, You which have sir done it? gave to us in the. Okay. Yes, sir, we have done this question. इसमें आपको कोई इशू नहीं है ना? And what about this? इस वाले को, ये वाली फिगर जो है, This one we have not done. ये नहीं किया है ना? So let's start with this particular problem. Problem is a engine crankshaft drives a reciprocating pump through a mechanism as shown in figure 2.12a. The crank rotates in clockwise direction at 1600 rpm, clockwise at 1600 rpm. 160 rpm, not 1600. 160 rpm. The diameter of the pump piston is itna. Dimension of the various links are given to you. Find for the position of the crank shown. Determine the velocity of the cross eddy, velocity of rubbing. अभी वो मैंने कराया नहीं, torque required ये सब कुछ नहीं कराया है. I will just come to the velocity analysis. This is the particular figure. Okay. The figure is clearly visible to you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर हम इसमें लिंक आइडेंटिफाई करना चाहें तो कितने नंबर ऑफ लिंक्स हैं? 4, sir. आप यहां तक गिनिए. ये 5, चीज. sir, 5. एक मिनट, जस्ट लिसन टू मी. Ignore this portion. Ignore this portion. इस लाइन के इधर जो भी पोर्शन है on the left hand side, ignore that particular portion. ठीक है, क्योंकि वो unnecessary का attachment है. Its motion is going to be controlled by the movement of the piston E. Okay. Forget about that left hand side. जो line draw किया उसके left hand side का portion भूल जाइए and just try to count the number of links present in the system. How many links are there? Sir. 7. 6 or 7? 5. 5, 6, 7. I've received 3 answers: 5, 6, and 7. But I can only identify 6 links. कैसे? जिन्होंने 5 या 7 कहा है उनके लिए just let me help them out. This is the fixed link, link number 1. This is fixed, link number 1. This is fixed, link number 1. Okay. Second link is your crank. Third link is AB. Fourth link is the bell crank lever. This is the bell. This is known as bell crank lever. जो आपका जिस तरह से ड्राफ्टर होता है ना, it just behaves in that particular manner. This is the bell crank lever. तो लिंक नंबर कौन सा हो गया? 1, 2, 3, 4, 4. ठीक है. This one is the 5th link. And the piston is the 6th link. So there are 6 links in the mechanism. Okay. Now we have to draw the velocity diagram. So what will be the first step? All the fixed points. Sir. Yeah. आपने कहा पिस्टन 6th रिंग है, GD रिंग नहीं है? G? ये जो D और G है ना, ये GD. नहीं बेटा, G और D के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है. D is connected to the point E on the piston. अच्छा. ठीक है ना? ठीक है. Still any doubt? या किसी को भी किसी भी तरह की डाउट हो? ये मैं आपसे लिंक क्यों गिनवा रहा हूँ? क्योंकि there are 2 different methods of finding out the velocity. One is this particular diagram and the another one is the instantaneous center method. Instantaneous center method तभी होगा जब हम number of links सही काउंट कर लेंगे. Therefore मैं अभी से आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि identify the number of links. So as per me there are 6 links in the mechanism. Okay. अगर आप इसको ले लोगे, F को ले लोगे तो 7 हो जाएगा. लेकिन it's just an extension of this. Okay. आगे अटैचमेंट लगा रखा है और कुछ नहीं कर रखा है. असली मैकेनिज्म आपका यहां से यहां तक ही है. So the first step is
I'll take a point as a fixed point. और कौन से OCG? I will write it as O, C, G. These are the fixed point. The crank is rotating in the clockwise direction. The length of the crank is given. The length of the crank OA is given, as well as the RPM is given. It means you can find out what will be the value of omega AO. It will be 2 pi n divided by 60. Okay. So if I'm interested in finding out the velocity of point A with respect to O, it will be omega AO multiplied by OA. It means a vector, पहला tick है for magnitude and the second tick is for direction. Okay. It means I'm having a vector and the full information regarding its magnitude and direction is known to me. पहला magnitude के लिए लगाऊंगा, दूसरा direction के लिए. Okay. So what will be the motion? The motion will be perpendicular. Direction of motion will be perpendicular to OA at A. When it is perpendicular at A, it will be perpendicular to each and every point right up to the point O. तो ड्राफ्टर इसके पैरेलल सेट किया और आपने कुछ इस तरह से बना दिया. Okay, this is the point A और ये वेक्टर देगा velocity of A with respect to O. Clear? Any doubt? No, sir. See, this is known as the configuration diagram and this is known as the velocity image. What is my intention? My intention is to locate all the points which are given on the configuration diagram in the velocity image. Out of different points, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Out of 7 points, जिनको नेम किया हुआ है, I have only represented three here and 1 over here in the velocity image. अभी भी कुछ points missing है जो मुझे चाहिए ही चाहिए. Okay. So if there is no doubt, can I proceed? Now I'm interested in. Yes, sir. Once I've located the point A, I am interested in locating the point B. Okay. Now again, the point B is having two different identities. It can be treated as a point on the link AB as well as it can be treated on as a point on the bell crank lever DCB. First of all, I'm treating the point B as a point on the bell crank lever. When I'm treating the point B on the in the first instance, I'm treating the point B on the link AB. When I'm treating the point B on the link AB, it means at this instant, the point B is rotating with A as a center. Okay, it means I need to find out the velocity of point B with respect to A, and it is omega of AB multiplied by AB. But the problem with me is that I don't know the angular velocity of this particular link right now, but I know its dimension. It means I don't have any information regarding the magnitude, but I know since it's a vector quantity, I know what should be the direction. Okay, so the direction should be perpendicular to AB at B, and when it is perpendicular to AB at B, it means it is perpendicular to each and every point on AB right up to the point A. So I'll set my drafter. One arm parallel to this, the another arm will become perpendicular. I will move back to the point A, and from point A, I'll draw a line of infinite length like this. Okay. By doing so, still I'm not in a position to define the point B. Now, in order to define the point B on the velocity analysis, I will consider the point B on the bell crank lever and on its arm BC. When I consider the point B on the arm BC, I need to find out the velocity of point B with respect to C, which will be omega BC multiplied by BC. But again, here the problem is that omega BC is not known to me. Only this is known to me. It means I don't know the magnitude, but I'm well aware of the direction. Well aware of the direction means when B
is rotating with respect to C, the direction will be perpendicular to BC through C. Where is C? This is C. तो इसके perpendicular आपने draw कर दिया something like this. Okay. अब जो intersection है, this line was also drawn to locate B, and this line is also drawn to locate the point B. The intersection of these two lines will define the position of point B. Clear? And this vector, Yes, sir. this vector will give me the velocity of B with respect to A, and this vector will give me the velocity of point B with respect to C. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now how to locate the point C? Point D. देखो एक systematic way से चल रहा हूँ. O locate कर लिया, A locate कर लिया, B locate कर लिया, C already located, and now my next intention is to locate the point D. ड्राफ्टर घर में यूज किया था कभी? Yes, sir. Yes, sir. फिर तो इसे लोकेट करना आसान हो जाएगा. कैसे लोकेट होगा? सर परपेंडिकुलर सर BC के लिए. लेकिन इस वेक्टर की लेंथ कितनी होगी? देखो मैं एक चीज दिखा रहा हूँ कि अभी तक जो आपने जो बी पॉइंट लोकेट किया उसने भी इस तरह से लोकेट किया. यही चीज है ना? ये स्केल से बना रहा है, मैं रफ स्केच बना रहा हूँ, बाकी तो यही चीज है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब कैसे लोकेट करें पॉइंट सी, पॉइंट डी? So by taking the ratio. Yeah, by taking the ratio. अब आप जब अपने जस्ट इमेजिन योर ड्राफ्टर दैट यू आर यूजिंग योर ड्राफ्टर, जब आपको ड्राफ्टर पे एंगल कुछ भी सेट करना होता था, आप क्या करते थे? ऊपर से उसका नॉब लूज करते हो और उसको हिलाते हो. ठीक है. तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस आर्म इज आल्सो इक्विवेलेंट टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस आर्म. ऐसा तो है नहीं कि दोनों का अलग अलग होता था. जिस रेट से इसे घुमाते थे उसी रेट से ये भी घूमता था. जिस रेट से इसको घुमाओगे उसी रेट से ये भी घूमेगा. But the only difference is the velocity of point B will be different in comparison to the velocity of point D. Yes or no? Yes, sir. Linear velocity. हाँ, linear velocity की बात करो. Linear velocity की बात करो बेटा. सही कह रहे हो आप. होगा कि नहीं? Yes, sir. और ये आर्म परपेंडिकुलर है एक दूसरे के. ये देखो अंदर वाली जो इसका मिड सेक्शन लाइन है परपेंडिकुलर है. Yes, sir. है ना? परपेंडिकुलर है. तो Yes, sir. अब मुझे ये मालूम है कि the vector CD should be perpendicular to the vector BC. This is the vector BC. The vector CD should be perpendicular. अगर ये आपका BC था, it should be perpendicular. Perpendicular तो ये पूरी लाइन है. अगर मैं इस पोर्शन को ना बनाऊं, सिर्फ इतना बनाऊं, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है. किस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होना चाहिए? BC के इस साइड में या BC के इस साइड में? सर जो लेफ्ट वाला है उसके इस साइड में बेटा. देखो मैं इसका पहली बात है मैग्नीट्यूड तो निकाल ही सकता हूँ. स्केल से बना रहा हूँ तो वेक्टर मैग्नीट्यूड तो निकाल ही सकता हूँ. बी के लिए भी सी सेंटर ऑफ रोटेशन है, डी के लिए भी सेंटर ऑफ रोटेशन है. I know the linear velocity of the point B with respect to C just by measuring this particular length. I know what will be the velocity of point B with respect to point C. ये वेक्टर मुझे बता देगा. So
कौन सा रिलेशन यूज करूं टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट डी? मैग्नीट्यूड की अभी बात कर रहा हूं, डायरेक्शन बाद में आएंगे। चलो, दोनों के लिए v इज इक्वल टू r ओमेगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ b इज इक्वल टू bc मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा bc। वेलोसिटी ऑफ d इज इक्वल टू cd मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा dc में भले लिख दूं, बट व्हाट इज omega dc is nothing but it is equal to omega bc. It means it can be written as cd into omega bc. यहां से आपका ओमेगा bc क्या आ जाएगा? फ्रॉम दिस इक्वेशन ओमेगा bc will be equal to velocity of b with respect to c divided by bc, और यहां से भी वही चीज है, यहां से ओमेगा bc क्या आ जाएगा? ओमेगा bc will be equal to velocity of d with respect to c divided by dc. ये भी से ओमेगा एक ही लिंक है, तो दो डिफरेंट तो ओमेगा हो ही नहीं सकते। इट मींस आई कैन राइट फ्रॉम दिस टू, आई कैन राइट velocity of b with respect to c divided by bc is equal to velocity of d with respect to c divided by dc. Therefore velocity of d with respect to c is nothing but equivalent to velocity of b with respect to c divided by bc into dc. Is it okay? Yes, sir. तो मुझे यहां से इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है? आई विल गेट द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मिलने से क्या होगा? आई कैन डिसाइड द लेंथ ऑफ द वेक्टर, आई कैन डिसाइड द लेंथ ऑफ द वेक्टर। बट द क्वेश्चन इज, आई नो दैट द वेलोसिटी वेक्टर dc should be perpendicular to bc. This is bc and it should be perpendicular to dc. मैं थोड़ा कुछ इरेज कर दूं यहाँ जगह साफ करने के लिए। Then what to do? अब आपने, मैंने कहा कि this is also, if this is c, this is b, this is d, it is also perpendicular. If this is c, this is b, this is d, ये दोनों परपेंडिकुलर है, लेकिन ये दोनों साइड तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास अब वेक्टर जो है यहाँ से एक फाइनाइट लेंथ का हो गया। इनफाइनाइट लेंथ का वेक्टर नहीं है कि दोनों साइड में बना दूं मैं। तो किस साइड में होना चाहिए परपेंडिकुलर? सर हम सर बी सी जो सर वेलोसिटी डायग्राम में आया सर, उसको बी पॉइंट पे रख के देखेंगे सर। सर अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसी तरफ को सर हम सी डी बना देंगे, सी डी भी उधर कोई घूमेगा सर। तो आप अपना जो ज्ञान है लगा करके बताइए किस साइड में होना चाहिए। सर वो जो राइट साइड वाला सर, राइट साइड होना चाहिए सर। इस साइड होना चाहिए। एरो दिख रहा है ना, कर्सर दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा? इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, राइट साइड। राइट साइड होना चाहिए सर। सर जो ओमेगा है सर, तो हम जो वो क्लॉकवाइज है, जो ओ पॉइंट पे है, तो सर जब वो क्लॉकवाइज घूमेगा तो जो सी डी एलिमेंट है सर वो भी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो सर आई थिंक वो लेफ्ट में होना चाहिए। अच्छा बेटा, अब ना बड़ा मैं आपको एक फिजिकल एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका जो हार्ट है किस साइड में होता है बॉडी के? लेफ्ट साइड। और लंग्स? बोथ साइड्स सर। बोथ साइड्स में है। मिडिल। लेकिन ठीक है, लेकिन नॉर्मली लोग उसे राइट समझते हैं, यही समझते हैं ना। चेस्ट का एक्सरे लेते हैं तो उसमें लंग्स में आपके वो है इन्फेक्शन है या नहीं है, वो चेस्ट से ही देखते हैं आपके, ठीक है। अब चीज ये, मैं आपको किसी भी तरह से घुमाऊं, क्या लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो सेम चीज इस कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में है। अब आप क्या करो, पढ़ना चालू करो, बी सी डी,
क्लॉक पढ़ रहे हो या एंटी क्लॉक पढ़ रहे हो? बी सी डी, जब मैं बी से एंटी क्लॉक, तो कॉन्फ़िगर ये वेलोसिटी में भी ऐसा तो नहीं हो सकता है ना? तो मुझे ये बी है, ये सी है, तो एंटी क्लॉक जाने के लिए किधर जाना पड़ेगा? इधर जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा? यार बड़ी सीधी सी बात है, ये आपका ड्राफ्टर है, ठीक है, ये हो गया आपका बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ठीक है। ये मान लो आपने यहाँ से 20 डिग्री पे सेट किया था, अब आपने क्या किया, इस डायग्राम में लो, अब आपने इसको ऐसे घुमा दिया, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ओके। अब ये 40 डिग्री पे हो गया, क्या इनका रिलेटिव पोजीशन चेंज हो गया है? इधर का इधर आ गया? नहीं ना। अब इसमें अगर आप पढ़ोगे तो बी सी डी एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा ना, बी सी डी एंटी क्लॉकवाइज है, तो वही चीज तो यहाँ रहेगी। यहाँ पे भी देखो यही हो रहा है, बी सी डी एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे भी दिस इज बी, दिस इज सी, इसके परपेंडिकुलर जितने लेंथ का होगा, दिस विल बी द पोजीशन ऑफ पॉइंट डी। This will be the vector CD. बात बैठे कि नहीं दिमाग में? Yes, sir. Yes, sir. समझ गए ना? Yes, sir. Because sir, they are fixed in respect to each Yeah. other. They are fixed. हाँ, ये L shape है, they are एक जगह सेंटर ऑफ रोटेशन C बना दिया है, लेकिन फिक्स्ड है वो, एक ही लिंक है ना ये बेटा, एक ही लिंक है, इसलिए ठीक है। सो आई थिंक हाउ टू लोकेट द पोजीशन ऑफ पॉइंट डी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वंस यू हैव लोकेटेड, यस और नो कुछ तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. बाकियों के साथ क्या है भाई? कोई एक बेचारी लड़की है जो बोलती जा रही है, बाकी तो सब चुप बैठे हैं। There are 90 students in the class. एक छोड़ गया मेरे बोलते ही। Attendees में एक मैं भी हूँ। There are 90 students, 89 students in the class right now, and I'm just getting a reply from either one or two students. What about the rest? चलो नहीं पूछना चाहते हो मत पूछो, मेरा काम आसान है। Now I have located the point D on the velocity image. The next point is to locate, or the next objective is to locate the point E. Again, E has two different identities. One, it can be considered as a point on the end of the length DE, and in the second instant, it can be considered as a point on the slider itself. First, I will consider it that E is a point on the link DE. When DE is on DE, its direction of velocity will be perpendicular to DE through D, perpendicular to this link DE, something like this. ये वेक्टर आप इनफाइनाइट लेंथ का बना सकते हो। When E is on the slider, it is bound to have a straight line motion through the guides. So this will be the point E. अब आप देखो सॉल्यूशन देखो, जाइए। Is it same or is different? सेम सर। Same. Same. ठीक है। अगर अब आपसे पूछा गया था व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट E, तब आपने क्या करना है, इस वेक्टर को मेजर करना है, O to E, जितना भी लेंथ आएगा और जिस स्केल से आपने बनाया उस स्केल से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब सिर्फ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पूछा गया, इट मींस ही इज टॉकिंग अबाउट द एब्सोल्यूट वेलोसिटी, एंड एब्सोल्यूट वेलोसिटी मींस वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी पॉइंट। लेकिन ट्रूली स्पीकिंग कोई भी वेलोसिटी आपकी एब्सोल्यूट होती ही नहीं है।
we always treat Earth as a fixed frame और यहाँ इसके relation में velocity बोलते हैं, but the thing is that Earth is also moving. लेकिन फिर भी हम for the sake of simplicity we consider Earth as a stationary frame. Okay? So Yes, sir. अगर आपसे एब्सोल्यूट ना भी पूछी, सिर्फ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई या पॉइंट बी पूछा, इट मींस इज टॉकिंग अबाउट द एब्सोल्यूट वेलोसिटी. अगर रिलेटिव पूछेगा तो नेचुरली पूछेगा व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी और समथिंग लाइक दैट. ओके, क्लियर? यस सर. ये लिखा है ना, Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू ओ. व्हाट इज ओ? ओ इज द फिक्स्ड पॉइंट. ओ इज द फिक्स्ड पॉइंट. Therefore पूछने को जरूर पूछ लिया व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, बट इट इज इन ट्रू सेंस इट इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए. अब अगर आपसे जो और कुछ चीजें पूछा होगा, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक ओमेगा ऑफ लिंक ए बी, ठीक है, तो मतलब ए और बी वेक्टर डायग्राम पे देखो किस पे आ रहा है, बी ए पे आ रहा है, तो यू नो दैट वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इन टर्म्स ऑफ this equation will be omega AB into AB. Therefore, omega AB will be velocity of B with respect to A divided by AB. जो भी आंसर आ जाएगा, ध्यान क्या रखना है, if this is in meters per second, this should be in meter. ऐसा ना हो कि ये मीटर्स में और ये मिलीमीटर या सेंटीमीटर में ले लिया. ओके, अगर अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लिंक BC, ये कितना है, ये कम टू द वेक्टर डायग्राम जहां B और C मिल रहे हैं. I will write velocity of B with respect to C is nothing but omega BC multiplied by length of the link BC. Therefore, omega BC will be velocity of B with respect to C divided by BC. It's as simple as that. ठीक है. अब जब आपको जो अगर आपने F की वेलोसिटी पूछा है, इट मींस इज टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट E. इसको मेजर कर लिया, क्योंकि ये जितने रफ्तार से आगे पीछे होगा उतनी ही रफ्तार से इसको भी आगे पीछे करेगा. स्ट्रेट लाइन मोशन, इट्स जस्ट लाइक टू बोगीज कनेक्टेड विद ईच अदर. ये इंजन हो गया, ये एक बोगी हो गया, वो वेलोसिटी वही होगी. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो जब सर ने आपसे वो ये वाला एग्जांपल तो नहीं कह रहा है आपसे, क्योंकि ये इसमें वाला टर्नरी लिंक है, कराया था. टर्नरी लिंक करवाया कराया था. यही कराया था. यस सर. यस तो सर. Yes, sir. तो सर अभी आपने हमारे ग्रुप में नहीं कराया ये. अच्छा को कराया. मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने F और G जो पॉइंट यहाँ पे लोकेट किया है, इसका क्या मेथड है चेक करने का कि आपने सही लोकेट किया या नहीं लोकेट किया है, ये बताया है सर ने? So we were told that how to locate that point by taking the ratios. हाँ, वो मैं समझ गया. Yes, रेशियो sir. प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन तो मैंने अभी आपको उसमें भी बताया है. ठीक है, मैंने भी तो जो D पॉइंट का है वो भी तो रेशियो प्रोपोर्शन से ही है ना, या आपको इन्होंने इस तरह से बताया होगा, मैं बता रहा हूँ इस पे. अगर E पॉइंट की वेलोसिटी के लिए बताया था रेशियो प्रोपोर्शन, हाँ, तो इन्होंने इस तरह से लिखा होगा BC अपॉन, या इस तरह से BE अपॉन BC is equivalent to velocity of B with respect to E divided by velocity of B, velocity of, एक मिनट यार मैं क्या लिखता जा रहा हूँ, BE upon BC is equivalent to velocity of E with respect to B divided by velocity of C with respect to B. इस तरह से बताया है. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Velocity Yes, of sir. E with respect to B is equivalent to BE by BC into velocity of C with respect to B. ये बताया ना.
Yes, sir. Yes, Yes, sir. ठीक है, इट्स यही तरीका होता है, बट द थिंग इज दैट कि एफ पॉइंट यहाँ पर और जी पॉइंट यहाँ पर जो वेलोसिटी इमेज में जो लोकेट किया है, क्या ये सही लोकेशन है? ये कैसे चेक करते हैं, ये बताया कि नहीं इन्होंने? यार ये तो बताया होगा या नहीं बताया होगा? सर इक्वेशन में दिया था BCF इज इन द क्लॉकवाइज, तो सर वेलोसिटी डायग्राम में भी वो क्लॉकवाइज आ रहा है सर। ये कॉन्सेप्ट ही यही है। आप देखो, वही एक कॉन्सेप्ट, और कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम पे पढ़ूं BCF रीड कर रहा हूँ, B मूविंग टू C देन F, आई एम मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वेलोसिटी इमेज पे भी जहां भी F पॉइंट है उसी तरह से पढ़ना पड़ेगा मुझे। BCF क्लॉकवाइज में जा रहा हूँ, यानी कि F पॉइंट सही लोकेट किया है। उसी तरह अगर मैं यहाँ की बात करूं, दिस इज CGD, जब मैं C से G से D पे जा रहा हूँ, आई एम मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वही चीज यहाँ पे होना चाहिए। When I'm moving from C to G and G to D, I'm moving in the clockwise direction. It means the points have been located perfectly in the right manner. Okay? yes Any doubt? No Yes, doubt, sir. sir. no No, sir. Okay. Let me find some another example. Yeah. Figure 2.13 shows the mechanism in which OA is this much, AB is 600, AC equivalent to BD, which in turn equivalent to 1.2 meter. OD is horizontal for the given configuration. If OA rotates 200 RPM in clockwise direction, find the linear velocities of C and D, angular velocities of link AC and BD. Let it be like this. आप solution देखते रहो, मुझे छुपा के कुछ नहीं मिल रहा है, आपको समझ में आना चाहिए. That is more important than hiding anything from you. Okay, the length of the crank. अब इसमें बेटा लिंक आइडेंटिफाई करो, कितने लिंक्स हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं. Identify the number of links present in this mechanism. Sir, 5. sir 4 Sir, 5, 4. Sir, 6. Sir, 7. I think the answer is a big 6. मैं कह रहा हूँ 6. जो 5 या 7 कह रहे हैं, can they give me the explanation why they have counted 7 and why somebody has counted 5? 7 वाले का तो मैं जानता हूँ उन्होंने क्या किया है, इसको अलग लिंक मान लिया, इसको अलग मान लिया, इसको अलग मान लिया, यही है ना? मतलब ए Yes, sir. को जिसने भी 7 का है उसने ए जी को 2 पार्ट में स्प्लिट कर लिया, ए बी एंड बी जी, वो 7 कह रहा है, ठीक है? Yes, लेकिन sir. 5 कौन कह रहा है और क्यों कह रहा है? Sir, 6 ही होगा, वो 5 सर नीचे वाला पार्ट देखा नहीं था. तो बेटा जो 7 कह रहे हैं ना, उनके लिए मैं क्लैरिफिकेशन देता हूँ. जो आपका लिंक एजी है, एजी इज अ सिंगल लिंक, आपने बीच में एक सिलेंड्रिकल होल बना दिया है, अदरवाइज मोशन प्रेडिक्टेबल नहीं रह जाएगा. यहाँ पे अगर आपने पिन जॉइंट पे मतलब 1 2 3 लिंक जोड़ दिया तो इसका मोशन कहीं ना कहीं जाके फंस जाएगा, या मोशन प्रेडिक्टेबल नहीं रहेगा. इसीलिए जो आपका ए एंड जी जो है, इट्स अ सिंगल लिंक. तो अब बी पॉइंट पे आपने एक लिंक पे यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल होल करके जो लिंक बीडी है उसको आपने पिन जॉइंट कर दिया है. ओके,
So there are 6 links. और इसके इंस्टेंटेनियस सेंटर में आपको बता देता हूँ कितना होगा. It is always n into n-1 divided by 2, where n is the number of links. इसीलिए मैं links हमेशा काउंट करवाता हूँ. So it will be 6 into 5 divided by 2, that is 30 by 2, which is in turn 15. इसके 15 इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन होंगे किसी भी टाइम पे, लेकिन इट्स अ डिफरेंट थ्योरी. इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा जब आप इस पे कॉन्फिडेंट हो जाओगे. उसके बाद आई विल मूव टू दिस. ओके. अब ये आपके सामने वेलोसिटी इमेज है. आप इसे देखिए और कोई प्रॉब्लम हो मुझसे पूछिए. आई एम देयर टू हेल्प यू. और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा ना, दैट सब्जेक्ट विल बी बेस्ड ऑन सम कॉन्सेप्ट्स. कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मैं पढ़ा ही नहीं सकता हूं. अगर वो मुझे जबरदस्ती डिपार्टमेंट में दे दिया तो मैं आपको सिलेबस बता करके गुड बाय कह दूंगा. आई कैन नेवर टीच अ प्योरली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जिसमें मैं 10 पेज पढ़ूं और आपको 1 पेज का प्रवचन दूं. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन. मैं वो चीजें कर ही नहीं पाता हूँ. ठीक है. इसीलिए मैं उस जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा इट विल बी एन स्कोरिंग सब्जेक्ट. स्कोरिंग क्यों होगा? बिकॉज इट इज ऑन बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट आपका सही है, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम अर्निंग द पॉइंट्स. इसलिए मैं बीच में बार बार पूछता हूँ. सम ऑफ यू माइट गेट इरिटेटेड कि समझ में आ गया, यही पूछता रहता है. लेकिन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लास्ट में जो बच्चा है जो नहीं भी पूछ रहा, उस जब तक लास्ट वाले को नहीं समझ में आ जाए तब तक फायदा कुछ नहीं है. क्योंकि वेलोसिटी मैं करा दूंगा, नहीं समझ में आएगा, एक्सेलरेशन पे जाऊंगा तो वेलोसिटी गलत कर दोगे तो एक्सेलरेशन तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा. देखना ही नहीं है, एक लंबा सा कांटा लगा देना है वहां पे बस. पर ये लिखना है. मजा बहुत आता है इससे. कॉपी चेक करने की रफ्तार बढ़ जाती है, लेकिन परेशानी भी होती है बाद में जब नंबर टेबुलेट करते हैं तो. है ना, कहते हैं ना अभी मजा बाद में सजा, वही वाली चीज है. यस सर. जस्ट हाँ, तो मैं ठीक है, सजा मजा दोनों साथ साथ चलते रहे. ठीक है, ये नहीं कि एक चीज एंजॉय पहले कर लिए बाद में रिग्रेट कर रहे हैं. तो प्लीज गो थ्रू द डायग्राम. आप लोग एक दूसरे से फिजिकली तो कभी नहीं मिले हो ना? नो सर. फिर पूछने में शर्म कैसे? यार पूछो, आपने मेरा चेहरा देखा है आज तक? नो सर. नो सर. नो सर. मैंने भी आपका चेहरा नहीं देखा है. ठीक है, मैं अपना चेहरा दिखा दूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है उसमें. लेकिन जब आपने एक दूसरे से मिले ही नहीं तो पूछने में शर्म कैसा है यार? यस सर. देखो, अगर एक बार डाउट में हो, पूछ लोगे, डाउट क्लियर कर लोगे, डाउट विल बी क्लियर फॉर लाइफ लॉन्ग. अगर डाउट नहीं क्लियर किया पूछ करके, क्यों? क्योंकि अगला क्या सोचेगा, यार मैंने इतना सिली सा क्वेश्चन पूछा. लेकिन जिंदगी में जो सिली क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वही सबसे ज्यादा भारी पड़ते हैं. तो बेटा एक बार पूछ लिया क्या वो, एक बार अगर कोई अगर हंसेगा भी तो एक बार हंसेगा ना, उसके बाद तो नहीं जिंदगी में कोई हंसेगा. ऐसे तो आप चुप चुप के रहोगे कि कोई जान ना ले मैं क्या सोच रहा हूँ. मेरा चेहरा देखना है आपने? यस सर. यस सर. डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे तो दिखा नहीं होगा. वो भी मांग के थक जाते हैं, मैं देता नहीं हूँ. देखा? यस सर. दिख गया ना? यस सर. यस सर. ठीक है. इसलिए मतलब तजुर्बा मेरे को 23-24 साल का हो गया इस लाइन में. इससे पहले 5-6 साल इंडस्ट्री में भी रह चुका हूँ. तो इसलिए मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग इन वेरी फ्रेंडली मैनर. फ्रेंडली मैनर मैं इसलिए, देखो मैं टीचर वाला रॉब कभी नहीं डालने की कोशिश करता हूँ. फ्रेंडली मैनर में इसलिए ताकि आप खुल के मुझसे अपने डाउट पूछ सकें.
मेरे इस प्रोफेशन का वर्थ तभी है जब आप मेरे से कुछ गेन करें. अगर नहीं गेन करेंगे देन इट्स एन यूजलेस थिंग फॉर मी. ये प्रोफेशन बेकार है फिर मेरे लिए. ओके, सो आपने मेरा चेहरा देख लिया. मैं बंद करूं कैमरा? यस सर. यस सर. ओके, सो जस्ट गो थ्रू दिस डायग्राम. और बेटा जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे से पूछने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इसमें है कुछ नहीं. सारी पूरा का पूरा जो आपका चैप्टर है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है आपका पूरा का पूरा चैप्टर. कॉन्सेप्ट यही है, कोई इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं यूज हो रहा आपके कोर्स में. अगर आप ये जल्दी समझ गए तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा. चलो अब आप ऐसा करो, आप में से कोई एक लीड लो और मुझे समझाओ कि ये किस तरह से बनाया है. गलती करोगे आई एम देयर टू हेल्प यू. सर. हाँ जी बेटा. सर ईबी वाली लाइन डॉटेड क्यों बनाई है? क्योंकि उसने आपसे कहीं क्वेश्चन में पूछा होगा, अगर या नहीं भी पूछा हुआ है. वीवी वाली लाइन डॉटेड इसलिए बनाई है, अगर मुझसे कोई पूछ लेता कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, अगर वो पूछ लेता, रिलेटिव नहीं पूछ रहा है, अगर वो आपसे पूछ लेता कोई कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, तब आपको क्या करना पड़ता? बी को स्टेशनरी पॉइंट से ज्वाइन करके इस वेक्टर की लेंथ को स्केल से मल्टीप्लाई करके आपको बताना पड़ेगा. इसलिए उसने इस तरह से दिखाया है. यस सर. यस. ओके सर. समझ गए ना? किसी भी पॉइंट के अगर वेलोसिटी की बात करें तो फिक्स पॉइंट से हमें जोड़ना ही पड़ेगा उसे. ठीक है, एक बार जोड़ दिया आपने, वेक्टर मिल गया, वेक्टर का लेंथ मिल गया, मल्टीप्लाइड बाय द स्केल एंड दैट विल बी द वेलोसिटी. इट्स एज सिंपल एज दैट. सर सर जब सर काफी पॉइंटों की वेलोसिटी 0 होती है तो उनको सर एक साथ कंबाइन करके लिख देते थे, और अगर सर कुछ पॉइंटों की वेलोसिटी सेम हो तो भी कैसे कर सकते हैं? नहीं, आपका सवाल ही गलत है. आप कह रहे हो जिन पॉइंट्स की वेलोसिटी 0 होती है हम उसको एक ही पॉइंट से डिनोट कर देते हैं. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ. मैं जब भी इमेज बनाता हूँ मैं ये कहता हूँ ऑल द फिक्स्ड पॉइंट्स आर गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल पॉइंट. व्हाई? क्योंकि फिक्स पॉइंट क्या होंगे? जो फिक्स फ्रेम पे होंगे, जो आपका लिंक फिक्स्ड होगा. ठीक है, तो उनकी तो वेलोसिटी होनी ही नहीं है. ठीक है, मैंने ये कभी नहीं कहा कि जिन पॉइंट्स की वेलोसिटी 0 होती है उनको हम उनको इस तरह से दिखाते हैं ना. मैंने ये कहा कि ऑल द फिक्स्ड पॉइंट्स आर टू बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल पॉइंट. ओके सर वो हमने सबसे पहले ई फिक्स पॉइंट लिया है, उसके बाद उसकी जो ए की जो वेलोसिटी है ओमेगा होगा वो हम निकाल पाएंगे उस फॉर्मूला से, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि मतलब 200 आरपीएम है रोटेशन पर मिनट. तो जो ओमेगा होगा वो 2 पाई आर अपॉन द टाइम पीरियड जो होगा 2 पाई एन बेटा, ओमेगा इज 2 पाई एन बाय 60. 2 पाई. ओके सर, वो बाय 60 हो जाएगा. तो ये 200 आरपीएम दिया है ना? यस सर, यस सर. एक मिनट, लेट मी फुल स्क्रीन करने दो इसको. ये जो है आपका 200 आरपीएम दिया हुआ है ना. तो मैं ओमेगा ए निकालूंगा, इट विल बी 2 पाई एन बाई 60. ओके, इससे मुझे इसका एंगुलर वेलोसिटी रेडियंस पर सेकंड में मिल गया. हाँ, फिर मैं निकालूंगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, दैट विल बी ओमेगा ए ओमेगा इनटू ओ ए, लेंथ ऑफ दिस लिंक. ठीक है, लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर लिंक. ये मेरे को मिल जाएगा. ये देखो, ये इसने नीचे निकाला भी है, देखो ये निकाला हुआ है. फिर वेलोसिटी ऑफ ए, अब देखो मैं लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, इसने सिर्फ लिख दिया वेलोसिटी ऑफ ए. क्यों? क्योंकि जो सर ओ फिक्स पॉइंट है. फिक्स पॉइंट है. हाँ, इसलिए चाहे मैं रिलेटिव वेलोसिटी कहूँ, ये है एब्सोल्यूट वेलोसिटी. इट इज ओमेगा ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय 6.28 मीटर्स आ गया. अब आप क्या करोगे? जहां आपके पास पहली वेलोसिटी आ गई, चूज अ स्केल, एंड व्हाइल चूजिंग अ स्केल बी
ट्राई टू बी वाइज। तो और वाइज होने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, नॉर्मली आप एक्सपीरियंस के साथ आएगा आपको। कई बार आप होता है सर कई यहाँ कोई पे स्केल ले। हाँ क्या बेटा? सर यहाँ पे 0.100 ले लेते हैं तो 6.28 आ जाएगा उसका। आप ऐसा करो ना, लेट 1 सेंटीमीटर नहीं सर equal 1 ले सकते हैं यहाँ पे, मीटर पर वो सेकंड। 0 में नहीं है तो ये डायरेक्ट ले सकते हैं ये हाँ, सर। तो अब 6.28 का तो वेक्टर आप बना ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि आपके पास जो स्केल होगा वो है तो ये होगा 6.2 होगा या 6.3 होगा। तो आप क्या करोगे, स्केल में 6.3 लेंथ लोगे। इसके परपेंडिकुलर आपने ड्राफ्टर सेट किया और कहाँ गया, एक मिनट, ओ ए के परपेंडिकुलर 6.3 सेंटीमीटर का वेक्टर बना दिया, ए पॉइंट मिल गया आपको। ठीक है, अब देखो अगर आप में से कोई कोशिश करेगा कि बी पॉइंट लोकेट कर ले पहले और उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन से जी लोकेट कर लेंगे या सी लोकेट कर लेंगे, तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप हमेशा देखोगे जब कोई बीच में लिंक के बीच में या स्टार्टिंग लिंक के बाद जो भी कोई पॉइंट आ रहा है उसको मैं लोकेट करने के लिए दो सेंटर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। दो सेंटर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मैं बी लूंगा तो बी के लिए एक सेंटर तो मेरा ए है, वो मेरे पास ऑलरेडी वेलोसिटी इमेज पे है। लेकिन अगर बी ही लोकेट करना है तो दूसरा सेंटर मेरे पास डी चाहिए। डी है कहीं? अभी तक कहीं डी नहीं है। इसलिए जब भी आप लोकेट करने की कोशिश करो, ट्राई टू लोकेट द एक्सट्रीम एंड ऑफ अ पर्टिकुलर लिंक। एक्सट्रीम एंड ऑफ ए पर्टिकुलर लिंक, एक एंड ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब मैं सी को ले लूंगा। ठीक है, जब सी को मैं ए सी पे मानता हूं तो इट इज परपेंडिकुलर टू ए सी थ्रू ए। ये इसने जानबूझ करके, क्योंकि इसको पता है सॉल्यूशन है, नहीं तो अगर मैं बनाता रफ में तो मैं इस तरह से बना देता, इस लाइन को आगे भी बढ़ा देता। ओके, अब मेरे पास देखो सी को लोकेट करने के लिए मैंने क्या लिया, पहले ए लिया। अब मैं सी को लोकेट करने के लिए क्या लूंगा, when it is on the slider, when it is on the slider, its line of stroke or line of motion will be perpendicular to guide through g guide है ना, g कहाँ पे है मेरे पास, ये है g, ये आ गया इसके परपेंडिकुलर, ये जहाँ इंटरसेक्ट किया, दिस इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट सी। अब जब मेरे पास सी लोकेट हो गया, ए मेरे पास था, ए और सी हो गया। अब बी को मैं लोकेट करूंगा। बी को लोकेट करने के लिए रेशियो प्रोपोर्शन ले लूंगा। रेशियो प्रोपोर्शन क्या होगा, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन होगा मेरा ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए। Therefore, velocity of b with respect to a will be ab by ac multiplied by velocity of c with respect to a। और यहां से आपको कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपको लोकेट कहां से करना है, आप देखो कहां से ले रहे हो, विथ रेस्पेक्ट टू ए ले रहे हो, तो ये जो भी बताएगा इतना मीटर पर सेकंड है, तो यहां से स्टार्ट होना पड़ेगा, ना कि यहां से। क्लियर? ओके सर। सर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे बताते हैं सर? परपेंडिकुलर के अंदर भी दो डायरेक्शंस आती हैं। बेटा पहले वेलोसिटी इमेज बनाना सीख लो, उसके बाद में डायरेक्शन वेलोसिटी इमेज से ही पढ़ के आपको बताना पड़ेगा। और अगर सर जॉइंट अगर बढ़ जाए तब, अभी फिलहाल तक 7-8 ही जॉइंट की बात हो रही है। बढ़ जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब भी बताओगे, जो भी आपको जो वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओगे वो इंस्टेंटेनियस होगी, वो इंस्टेंटेनियस होगी, उस इंस्टेंट के लिए वो सही होगी, नहीं तो नहीं होगी।
अब मैं देखो, मैं चलो तुम्हारे को पूछा है तो मैं बता देता हूँ। अब मैं अगर इस वेक्टर को देखूं, मैं पूछूं व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ सी, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ सी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ए। मुझे मालूम है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दिस इज द सेंटर ऑफ रोटेशन, दिस इज फॉर सी ए इज द सेंटर ऑफ रोटेशन, और वेक्टर इस तरह से जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इट इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज। हम्म, क्या बोला बेटा? सर रिपीट नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हो? सर रिपीट। Look at the vector AC, ठीक है? Right from this velocity image, I can say, I can't, not only I can say, but it's clear that while drawing this, I have imagined that C is rotating with respect to A. C है, C के लिए A center of rotation. अब C की डायरेक्शन ये है, तो ये अगर रोटेशन में है, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन देगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगा? क्लॉकवाइज। बस यही, ये इसी तरह से डायरेक्शन निकालते हैं। आप कोई भी लिंक का एक पर्टिकुलर सेंटर ऑफ रोटेशन के उस पे निकालोगे, रेस्पेक्ट पे। ओके, समझ रहे हो ना? और ये जो भी आप डायरेक्शन दे रहे हो, इट्स द आंसर इज करेक्ट ओनली फॉर दिस इंस्टेंट। द मोमेंट थीटा 60 की जगह 90 या 100 हो जाए, सारी कहानी पलट जाएगी। तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ता है? कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना पड़ता है हर एक इंस्टेंट के लिए, लेकिन उसका भी बेसिस यही होगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। और कोई डाउट हो, या मैं जो पढ़ा रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा हो, कोई इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत हो तो आप बताइए, मैं आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। वो जो फॉर्मूला आपने बताया था n(n-1/2) वाला, वो किसके लिए और किस टाइप के रोटेशन के लिए, और वो फॉर्मूला ऐसा कहाँ से, वो बता दीजिए। वो बेटा मैं इस पे, वो बेटा वो जो है ना, वो फॉर्मूला मैं इस पे भी लगा सकता हूँ। वो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ मेथड रोटेशन से है, वो भी वेलोसिटी एनालिसिस में यूज होता है, लेकिन ये रिलेटिव वेलोसिटी मेथड है, वो इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड है। वो भी टॉपिक में कवर करूंगा। ओके सर। ठीक है, अभी जब तक आप इसमें थ्रू नहीं होते हो तब तक मैं इंस्टेंटेनियस सेंटर पे नहीं जाऊंगा। सर हम्म, सर जैसे इसमें स्केल चूज करते हैं तो सर जो आंसर एक्यूरेट तो आएंगे नहीं सर? नहीं बेटा, वेक्टर अप्रोच में कभी आपका आंसर वेक्टर क्या, अगर आप क्या कहते हैं न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर रहे हो, कोई डेसिमल के दूसरे प्लेस पे राउंड ऑफ कर लेता है, कोई पूरा 8वें 9वें प्लेस तक चला जाता है, वो दैट इज नॉट ऑफ मच सिग्निफिकेंस। ठीक है, अगर आंसर आपका 0.1 0.2 में वेरी कर रहा है, दैट इज नॉट रीजनेबल ग्राउंड फॉर द डिडक्शन ऑफ मार्क्स। चीज ये कि कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं मान लो √2 क्या होता है? 1.414 होता है। यस आपको सर। क्या लगता है 1.414 पे ही रुक जाता है जा करके? आगे कुछ और नहीं है? होगा सर सर। आगे भी होता है। ठीक है, नॉर्मली जब हम यस छोटे सर क्लास में होते एग्जाम्स हैं। में ये ड्राफ्टर के साथ करने कुछ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर ये प्योरली ज्योमेट्रिकल मेथड है ना, इसका कोई न्यूमेरिकल मेथड भी होता होगा इसको करने का, मतलब हाँ है, फॉर्म। लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है। ओके सर। सर ठीक है शीट के साथ ही मतलब ड्राफ्टर को अटैच करके शीट के ऊपर ही करेंगे। बेटा, ये आपके जो आंसर, अभी तो आपने यहाँ का क्वेश्चन आंसर शीट देखा ही नहीं ना इस कॉलेज का। आप जैसे हाँ मर्जी बनाओगे, मेरे को तो सॉल्यूशन भेजोगे आप, अगर कोरोना ऐसे ही चलता रहा तो। ठीक है, ओके। एनीथिंग एल्स? नो सर। ओके, जस्ट बी देयर।
Okay, now you are free to leave the meet. Huh? थैंक यू सर. Welcome. थैंक यू सर. थैंक यू सर. अच्छा, एक आपका सीआर जो भी है ना, इट्स एडवाइस की एक व्हाट्सएप ग्रुप बना ले, उसमें मुझे इंक्लूड कर लो, नहीं तो मेरे लिए बोलने का फायदा क्या है. माय नंबर इज 9815987789. 981 हेलो 9815987789. Okay. 87789. Yeah, 87789. I'll make a group today. So. Okay. Thank you very much. Okay, bye. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, I'm leaving the meeting. Okay. थैंक यू सर. Okay. Welcome.